Okay, so gentlemen, the recording is also started. So the topic which we are covering today is the TCP overview. We talked about yesterday, we started this chapter and the topic was the transport layer. The topic was the transport layer. And you understand that if you look at the TCP IP suite, the upper layer is the application layer and below this we have the transport layer. And then we have already covered the network layer. We have already covered the data link layer. And we have already covered the physical layer. We have also seen that the data link layer is divided into two, which is the logical link control and the MAC layer. So today our topic is here, where the two important protocols are TCP and UDP. So this topic is about TCP. Is it clear? समझ आ गई हमारा टॉपिक क्या है आज का? ठीक है. सो जेंटलमैन, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है. मिसाल के तौर पे आपकी एप्लीकेशन है FTP, आपकी एप्लीकेशन है SFTP. ये प्रोटोकॉल. सर प्लीज स्क्रीन शेयर करें सर प्लीज. ओके शेयर. अब शेयर है. यस सर अब शेयर होगा. Okay, nice. So the topic today which we are covering is about the TCP overview. And why we are covering this? Because the main topic is the transport layer. And in at the transport layer, the functionalities which are there are performed by these two protocols. One is the TCP and the two is the UDP. Okay? So this topic is about the transport TCP, transmission control protocol, and we want to take its overview. So the best will be that first, as you know, that when the application generates some bits, these bits are given to this layer and to the transport layer, right? And here, this will be the something which are coming from the upper layer. May I call it as the payload? And what is added to this payload? A header. As you can see here, this red one is the header. Then this whole is sent to the next layer, and we call it the payload for this layer. And an additional header is added to it. And an additional header is added to it. And this phenomenon is called encapsulation. This phenomenon is called encapsulation. So, ladies and gentlemen, what happens here? That we are at the transport layer. So the topic is that what header is added by the TCP. And you must know that the transport layer, which means the TCP in this case, adds a header which gives it has certain functionality. Like for example, it do the flow control. It performs the reliable communication. So it provides the other functions as well. So how these functionalities are performed, like reliable transmission, flow control, and the window size. So all of these are performed by the header. So first of all, we should look at the 20 bytes which are added by the TCP. बात समझ आ गई? आसिफ, इलियास, अरसलान. Yes sir. Very nice. So I go to this slide first. That what is this? Here is the header, the 20 bytes. You can see this is the word number 1. This is word number 2, and every word is of 32 bits, which means 4 bytes. So 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes, and 4 bytes. So total becomes 20 bytes. 20 bytes. So as I said earlier, that this is the TCP protocol, and every protocol has a syntax,
and semantic. Every protocol has a syntax and semantic. What mean by the syntax? Which means the grammar, the structure. The grammar is like the structure of your language. So syntax of the protocol is like the grammar. What it means? What should be first? What should be second? Like for example, if you write English, it is very important that you should write the subject first, then the verb, and then the object. When you write in this format, it gives certain meaning, otherwise not. So syntax is something this. And then semantic, what meaning it should give you. What meaning it should give you. So the syntax is that first you should send the source port. Here the source port is provided. Do you remember? कल जब हम काम कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे एक कमांड दी थी, फॉर एग्जाम्पल नेटस्टैट। तो उसने आपको क्या चीजें बताई थी? फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बताया, देखें कि आपका लोकल आईपी एड्रेस क्या है। तो मेरा लोकल एड्रेस आज क्या है? 10.137.12.31. What is my source port? So this is the 55,005. What is the destination? Destination is this IP address. And what is the port? 443. HTTPS means 443. So this is the port number. This is the port number. So here, from where these port numbers are taken, these are the 16 bits which are responsible to give the source port and destination port. And I have told you yesterday, ladies and gentlemen, that how it works, Sajid, कि आपकी बहुत सी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, आपकी बहुत सी एप्लीकेशंस हो सकती हैं. So these applications generate data, and that data, like here you can see that your application layer will generate a data, and that data will be given to, and it is must, you understand that there will be not a single application, there can be multiple applications. Like for example, you can see here that my Zoom is with you, my WhatsApp is working, maybe my Telegraph is working, maybe my meeting is working, maybe my other applications like Facebook, like other chatting programs are running. So many applications are running simultaneously. So how this data will be separated? By this port number, this port number, this port number, this port number, and so on. Make sense? So gentlemen, you know that if it is 16 bits, you can have 2 power 16 different port numbers. 2 power 16, which is equal to 65,535. That is the reason you can see here that my port numbers are always less than this number. Somewhere 49,820, somewhere 49,821. You can see this number is always less than, 60,729, 61,206, and so on. So why this number is less than that? Because it is a 16-bit number. Is it clear, gentlemen? Ladies and gentlemen? बात समझ आ रही है? Okay. Now further let me tell you that this port numbers are divided into 3 different groups. Number 1, number 2, and number 3. For what purpose? Important is this. So gentlemen, the port numbers are, number 1, well-known ports. Well-known ports. They are from 0 to 1023. The first 1023 ports are for the well-known applications. For the well-known applications. Is it clear, Mansoor? ठीक है? क्या मतलब है वेल नोन? मिसाल के तौर पे you want to do telnet, you want to do telnet, you want to do SSH, you want to do FTP, you want to do HTTP, you want to use HTTPS. All are these. You want to do SMTP. All are these are well-known applications.
सो वेल नोन एप्लीकेशन क्यों ये जरूरी है? क्योंकि ये एप्लीकेशन सर्वर पे चल रही होगी, वेल नोन एप्लीकेशन ऑन सर्वर। तो अगर ये पोर्ट नंबर वेरिएबल होता तो आप कभी भी उस तक ना पहुंच सकते। इसलिए जरूरी है कि इस किस्म की फंक्शनैलिटीज को आसिफ, इलियास, साजिद, हम इसको एक ऐसी पोर्ट पे रखें जो पूरी दुनिया को पता हो, ताकि आप एप्लीकेशन लिखें, मिसाल के तौर पे यू आर राइटिंग एन एफटीपी क्लाइंट, you know that it will go on port number 20 and 21. अगर आपने ईमेल क्लाइंट लिखना है तो you must know that it should go on port number 25. So they are well known. You got the point of well known? बात समझ आ रही है जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन? Yes, sir. वेरी नाइस। तो ये तो हो गई वेल नोन पोर्ट्स। इसके बाद कुछ पोर्ट्स ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड पोर्ट कहलाती हैं, यानी वो वेल नोन तो नहीं है, लेकिन उन पे एक ऐसी एप्लीकेशन चल रही है जिसके ऊपर आप नहीं चाहते कि वो उनका पोर्ट नंबर तब्दील हो। मिसाल के तौर पे सिस्को की एग्जांपल ले लेते हैं। सिस्को का एक ऑथेंटिकेशन सर्वर है। अब लाजमी तौर पे आपने ऑथेंटिकेट होना है, अगर उससे, अगर कोई ट्रिपल ए सर्वर है, आपने वहां पे ऑथेंटिकेट होना है, अगर उसका पोर्ट बदलता रहे हर रोज, हर घंटे, हर मिनट, तो आप किस तरह उसके पास जाएंगे? तो उसको वेल नोन पोर्ट नहीं दी जा सकती क्योंकि उसकी एप्लीकेशन को वेल नोन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ऐसी है जिसकी पोर्ट बदलनी नहीं चाहिए। ऐसी पोर्ट, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी सिस्को की, सिस्को को पोर्ट नंबर मिली हुई है 1812। नाउ दैट इज फॉर द ट्रिपल ए सर्वर ऑफ दी सिस्को। सो दीज पोर्ट्स आर कॉल्ड, मिसाल तौर पे आपकी कोई कंपनी है, आप उसके ऊपर एक कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं कोई मकसद के लिए, आप चाहते हैं इसकी पोर्ट तब्दील ना हो, आप अपने यूजर को पहले से बता देते हैं कि ये एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करो, उसमें पहले से डिफाइंड होता है कि यू विल कम टू दिस आईपी एंड दिस पोर्ट नंबर। आईपी तो आप फिर भी डीएनएस से ले सकते हैं, पोर्ट नंबर आप नहीं ले सकते। तो दैट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव ए डेडिकेटेड पोर्ट असाइंड टू यू। जी, देयर इज समथिंग इन चैट। Muhammad Asif is asking why we don't have want change. Very nice, gentlemen. क्योंकि अगर क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों हम नहीं चाहते कि पोर्ट नंबर तब्दील हो। तो बड़ा आसान सी बात, अगर आपका वीसी साहब किसी भी कमरे में जाके बैठ जाए, पोर्ट नंबर इज लाइक द डोर ऑफ दैट ऑफिस, वो किसी भी कमरे में जाके बैठ जाए, तो क्या क्वेश्चन था फ्रॉम आसिफ। आसिफ, आप अपने वीसी को ढूंढ लेते हैं? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू सर्च हिम? बिकॉज वो तो किसी कमरे में 100 कमरे हैं, यहाँ तो 65,000 कमरे हैं, 65,536 पोर्ट्स हैं, so that will become impossible. That is the reason such applications which are important, they should listen on a specific port only. Do you got the answer, Asif? यस सर आंसर सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें पोर्ट नंबर चेंज क्यों चाहिए सर, और अगर लेट्स सपोज वो दूसरी पोर्ट पे ये वो काम कर ही नहीं सकता, तो अगर सर दूसरी पोर्ट पे उसका डाटा चले जाए तो वो डाटा लॉस होगा या कुछ और सीन होगा सर? वो किसी और पोर्ट पे जा ही नहीं सकता। अगर आप मिसाल के तौर पे एफटीपी का पोर्ट नंबर 100 पे भेजें, तो उसके ऊपर वो एप्लीकेशन लिसन ही नहीं कर रही, लाजमी तौर पे इट विल बी लॉस्ट, इट विल बी कंसीडर्ड एज गार्बेज। ओके सर। ठीक है, तो आपने, जैसे कि आपको पता होता है, मिसाल के तौर पे आपकी क्लास है, तो देखा आपने गौर किया होगा कि आपके टाइम टेबल में लिखा होता है कि यू हैव टू गो टू क्लास नंबर 301। अभी एक वेल नोन सिस्टम कहने रजिस्टर कर दिया गया कि सेमेस्टर में 301 पे फलाने बच्चे आके यहाँ बैठेंगे। अब अगर आप 301 के बजाय 501 पे चले जाएं, डेफिनेटली यू विल बी लॉस्ट। बात समझ आ गई? यस सर। जी, हमने कल भी ये बात की थी कि इसके ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्रामर बैठा हुआ है। कल हमने, आप भी उस वक्त कल ऑनलाइन थे, एप्लीकेशन प्रोग्रामर बैठा हुआ है, वो डिफाइन करता है कि ये एप्लीकेशन किस आईपी पे जाएगी, और अगर आईपी पे नहीं तो कहेगा डीएनएस से लो, लेकिन पोर्ट वो डिफाइन करेगा कि मेरी पोर्ट ये,
डेस्टिनेशन की पोर्ट। एप्लीकेशन प्रोग्रामर जैसे आप जैसा बंदा होगा जो कि एप्लीकेशन लिखेगा, चाहे वो कोई चैट प्रोग्राम है, चाहे वो कोई ऑडियो चैटिंग है, वीडियो चैटिंग है, कोई स्ट्रीमिंग है, कोई वीडियो ऑन डिमांड है, वो जब अपनी एप्लीकेशन लिखेगा उसमें वो डिफाइन करेगा कि कौन सा पोर्ट नंबर। मिसाल के तौर पे अगर मैंने ऑथेंटिकेट होना है, मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करता हूं, आप भी करते हैं, नेट अकाउंट पे जाते हो ना, तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड देते हो। तो जब आप अपने यूजर नेम पासवर्ड देते हो तो आप इस पोर्ट नंबर, वो एप्लीकेशन को पता है कि आपने इस पोर्ट नंबर पे जाके अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाना है। ये दैट इज अ गुड क्वेश्चन। मैंने अभी कहा कि वो रजिस्टर्ड है किसके पास? अयाना के पास। अयाना ने उसको दे दिया कि जी, क्योंकि मैं आपको वेल नोन पोर्ट नहीं दे सकते, ठीक है, it is not a well known application, but you definitely need a registered port, pay, and your port number is 1812. So around the globe people visit the net archive to read the material, but they need to be authenticated first. So where they should go? To a server, to a AAA server whose IP address you can get from the DNS, but the port number is fixed, which is 1812. जी बिल्कुल, क्वेश्चन ये आया मुझ पे कि जी हमें तो नहीं पता। नहीं, आपने उसकी एप्लीकेशन जब अपने पास इंस्टॉल की, आप क्लाइंट अपने एंड पे हमेशा इंस्टॉल करते हैं। जब क्लाइंट करते हैं तो क्लाइंट क्या है? एप्लीकेशन। वो किसने लिखी है? एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने। उसमें डिफाइंड है कि पोर्ट नंबर 18 रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर 1812 के ऊपर ये अपनी रिक्वेस्ट भेजिएगा। बात समझ आ गई? नाइस। तो हमने कहा कि जी अराउंड 49,100 और सम नंबर है। अगर मैं एग्जैक्टली आप अगर चाहते हैं कि जी आपको बताया जाए तो आई कैन शो यू हियर कि रजिस्टर्ड पोर्ट्स, कोई और क्वेश्चन भी है मैं उसको भी देखता हूं। रजिस्टर्ड पोर्ट्स टीसीपी, इतनी देर में मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। तो देखिए जी, मैंने अभी कहा था कि 1024 से लेकर 49,151, ये मैंने अभी कहा है ना, देख लें। और फिर उसके बाद मैं एक क्वेश्चन लेता हूं चैट से। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। तो फिर मुझे ये नहीं पढ़ना चाहिए, आप कहते हैं इसमें कुछ भी नहीं है। एंड देन यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन कि फिर 49,152 से लेकर 65,535 तक, इसको कहते हैं टेम्पररी पोर्ट्स, एफिमेरल पोर्ट्स। क्या कहते हैं? टेम्पररी पोर्ट्स। ये क्लाइंट्स इस्तेमाल करते हैं, तो क्लाइंट ने भी तो बात करनी है ना। तो आप देखें, मैंने जितनी भी कम्युनिकेशन की, मेरा पोर्ट नंबर 49,152 से लेकर 65,535 तक, देख लो, ये आपका देख सकते हो, मेरा पोर्ट नंबर हमेशा इसी रेंज में आपको नजर आया। ओ सॉरी, ऑन हो। तो बात समझ आ रही है? इलियास, आसिफ, शाकिर, Yes. आगे Yes, sir. शाबाश। तो जी, तो स्क्रीन भी अब दिखाई दे रही है, नाइस। तो आप देख रहे हैं कि मेरा पोर्ट नंबर हमेशा एफिमेरल पोर्ट में से, क्योंकि मैं क्लाइंट हूं, मैं कोई सर्वर नहीं हूं कि मुझे वेल नोन पोर्ट चाहिए या मुझे कोई रजिस्टर्ड पोर्ट चाहिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे क्लियर करना मकसद था कि आपकी पोर्ट्स जो हैं, वो आपकी जो पोर्ट्स हैं, दीज आर द पोर्ट नंबर्स। ये बात एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये पूरी कहानी आपके सामने प्रेजेंट की। ठीक, उसके बाद तो इससे तो क्या फायदा मिला? मल्टीप्लेक्सिंग हुई कि बहुत सी एप्लीकेशन मुख्तलिफ पोर्ट से आ रही थी, तो आपको पता चल रहा था कि बहुत सा डेटा आ रहा है, फिर आपने उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके आपने
नीचे एक नेटवर्क लेयर को दे दिया। इसका मतलब व्हाट दिस फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। इस तरह जब मल्टी बहुत सा डेटा आ रहा था, आपने उनका पोर्ट नंबर पढ़ के हर एक को उसके पोर्ट के मुताबिक भेज दिया, इसका मतलब क्या हो गया, डी मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसलिए मैं कहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपका ये पहला वर्ड जो है दैट इज यूज फॉर मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है। आसिफ सर पावर पॉइंट मैक्सिमाइज करें। अच्छा, आपको अगर मैं इसको और चलें मैक्सिमाइज कर देता हूं। मुझे एक साथ साथ आप लोगों के मैसेज जो है चीजों को साइड पर रखा हुआ है। एनीवे, अब नजर आ रहा है। अच्छे से। तो उसके बाद है सीक्वेंस नंबर। तो आप हमने ये इस्तेमाल होगा रिलायबिलिटी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए, ये दोनों वर्ड्स 2 और 3। हम हर एक सेगमेंट को एक नंबर दे देंगे, 32 बिट नंबर। तो मिसाल के तौर पे आपने पहले को दिया 100, इसका मतलब इसमें 0 से 1 से 100 तक सारी जो आखिरी नंबर है, ये आखिरी बाइट का नंबर है। आखिरी, मिसाल के तौर पे ऊपर से डेटा आया जो कि 100 बाइट्स थी, मैंने उसको नंबर दे दिया 100, इसका मतलब इसमें 0 से 100 तक मौजूद है, 1 से 100 सॉरी। अगले 200 और आए, तो वो 101 से लेके 300 तक 200 और है ना, तो उसको मैं सीक्वेंस नंबर क्या दे दूंगा, 300 सेगमेंट को। अब इसके बाद लेट करें 50 और आए, तो वो 301 से 350 तक हो जाएगा, मैं उसको कह देता हूं 350। मिसाल के तौर पे ये दरमियान से नहीं मिला मुझे, ये लॉस हो गया, तो इसका मतलब मुझे 100 मिला और उसके बाद 350 मिला। इसका मतलब अगर रास्ते में मुझे तो 50 बाइट्स मिली है, लेंथ में है 50 बाइट्स, इसका मतलब कुछ ना कुछ रास्ते में गिरा हुआ है, मैं उसको एक्नॉलेज नहीं करूंगा, मैं एक्नॉलेज करूंगा 1 से 100 को, ताकि मुझे दोबारा ये भेजे। तो इस अमल के लिए क्या चीज है, ये क्या ये काम नहीं करेगा। मैं उसको पहला पैकेट जब पहुंचेगा, मैं उसको एक्नॉलेजमेंट भेजूंगा 101, इसका मतलब है कि उसको पता चल गया कि मेरी पहली 100 बाइट्स पहुंच गई, बस अब उसको और भेजने की जरूरत नहीं है, इसको और भेजने की जरूरत नहीं है। ओके, इसको और भेजने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद मैंने जब 300, इसका मतलब कि 101 मैंने भेजा है, तो इसका पता चला कि 101 से आगे भेजो, इसने 200 और बाइट भेज दी, नंबर हो गया 300, लेकिन नहीं पहुंचा। अगला, क्योंकि मैंने एक्नॉलेज नहीं किया इसको, जब पहुंचा नहीं तो एक्नॉलेज नहीं करूंगा ना, जब पहुंचा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो दोबारा मुझे 101 के बाद दोबारा 111 से दोबारा स्टार्ट करेगा। देखे ना, इसके बाद मुझे फिर वो 200 बाइट दोबारा मिल जाएंगी, तो मुझे मिल गई, तो मैंने 301 के साथ उसको एक्नॉलेजमेंट भेज, तो उसने फिर मुझे 301 से लेके 350 तक भेज दिया, मैंने 351 एक्नॉलेज कर दिया। एक ज्यादा करने का मतलब ये होता है कि इससे एक कम मुझे मिल गया, तो मुझे ये भेजना शुरू करो। इस बात समझ आ रही? ओके, देन इज दी जेंटलमैन इज दी हेडर लेंथ। तो ये है इन वर्ड्स, ये बाइट्स में नहीं है, ये बिट्स में नहीं है, ये वर्ड्स में। क्यों? क्योंकि अगर अगर ये वर्ड, इसका लेंथ 4 बिट्स है, तो 4 बिट में तो 0 से 15 तक आता है, पता है ना मंसूर? नहीं, 4 बिट्स हो, 4 बिट्स में आप कहां से कहां तक मेजर कर सकते हैं, 0 टू 15, 0 टू 15। लेकिन इसमें तो कम से कम अभी मैंने बताया कि 20 बाइट्स, तो वो तो नहीं यहाँ शो किए जा सकते, तो ये वर्ड्स को शो करता है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट यहाँ 5 लिखा होगा, इसके मतलब 5 वर्ड्स हैं, हर वर्ड 4 बिट बाइट्स का है, हर वर्ड 4 बाइट्स, तो यू 5 इंटू 4 20 बाइट्स। अगर कोई आपने एक्स्ट्रा चीज देनी है, डालनी है,
तो फिर आप यहाँ 5 से 6 कर देंगे, तो एक वर्ड बढ़ जाएगा, ऑप्शनल है। लेकिन यू विल वेरी रेयरली फाउंड these optional fields. Always you will find it that it has a 5 words. ठीक है। उसके बाद अगले 6 बिट्स किस पर्पस के लिए हैं? दे आर रिजर्व। जब रिजर्व है तो बस रिजर्व है, यानी फ्यूचर यूज के लिए है। कभी इस्तेमाल किया गया तो नाइस, नहीं किया गया तो कोई जरूरत नहीं। सर, इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम फॉर वेटिंग फॉर एक्नॉलेज? यस, यस, व्हाई नॉट। एक्नॉलेजमेंट का आप जब करेंगे, मैंने फिक्स नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे आप सोर्स हैं, डेस्टिनेशन आपके करीब पड़ा हुआ है उसी कमरे में, क्या इसके लिए, और सेकंड आप सोर्स हैं और डेस्टिनेशन जो है वो यूएस में पड़ी हुई है, क्या इन दोनों के लिए टाइम सेम हो सकता है? हरगिज़। तो आप चेक करेंगे कि आपका आरटीटी कितना है, आप इससे कम से कम ज्यादा रखेंगे। राउंड ट्रिप टाइम, साल तो भाई राउंड ट्रिप टाइम हियर माइट बी 1 माइक्रोसेकंड, हियर इट कैन बी 1 मिलीसेकंड। Looking at this delay, you will come up with the some time. उसके बाद अगर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, एक्नॉलेजमेंट आपको का रिजल्ट आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो यू विल रीसेंड द पैकेट। बात समझ आ गई? सर ये समझ गए सर। ये टाइम हम ये प्री डिफाइंड होगा या सर हम खुद डिफाइन करेंगे? हो नहीं सकता प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड हो नहीं सकता। लाजमी तौर पे इट विल बी मेजर्ड ड्यूरिंग के आपने पैकेट भेजा, आपको पहली एक्नॉलेजमेंट आई, आपको पता चला कि टुक फॉर एग्जांपल 1 मिली सेकेंड, इट टुक अराउंड 1 मिली सेकेंड। आप अपने आप को उसके मुताबिक कर लेंगे कि अच्छा 1 मिली सेकेंड शुड बी ग्रेटर। आपको उसके बाद अगला पैकेट 1.2 मिली सेकेंड के बाद आया, आप अपने आप को 1.2 से ज्यादा कर लेंगे कि नहीं जी इसमें 1.2 भी लग सकता है। तो देयर कैनॉट बी हैव एनी प्री डिफाइंड वैल्यू, बिकॉज प्री डिफाइंड आप तो मिलियंस ऑफ साइट्स हैं, क्या मुझे सारी दुनिया के राउंड ट्रिप टाइम पता होंगे? क्योंकि नेटवर्क की कंडीशन तब्दील होती रहती है, कभी नेटवर्क कंजेस्टेड हो जाता है, कभी नेटवर्क फ्री हो जाता है। हाउ यू कैन, हाउ इट्स पॉसिबल कि यू कैन थिंक अबाउट सम वैल्यू विच इज अ कांस्टेंट? बात समझ आ गई यहाँ से? इट इज अ वेरिएबल। हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर ये टाइम हम ये प्री डिफाइंड होगा या सर हम खुद डिफाइन करेंगे? मैं यही बात कह रहा हूं आसिफ कि ना ये प्री डिफाइंड है, ना आप इसको चूज करेंगे। आपने दो लफ्ज कहे, प्री डिफाइंड का मतलब यह है कि आप कहते हैं मिसाल तो 1 मिली सेकेंड है बस। हो सकता है कि आपका पैकेट इतना दूर जा रहा है, लेट 25 हॉप्स गुजार के आ रहा है और सर्वर भी बिजी है, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि आप एक खास वैल्यू के साथ स्टार्ट कर दें, उसी के साथ स्टक कर दें? नहीं कर सकते। आप नेटवर्क में मेजर करेंगे कि जी मैंने पहला पैकेट भेजा, हाउ मच आई शुड वेट। लेट्स करें कि आपने पहले पैकेट में, जैसे मिसाल के तौर पे आसान सी बात करते हैं कि आप बाज़ औक़ात किसी बंदे का जब इंटरव्यू करते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसको एक क्वेश्चन देते हैं, अगर वो उसका जवाब दे देता है, आपको पता चलता है इसका लेवल यहाँ है, आप उससे और आगे जाते हैं। तो पहले वर्जन में आपको नहीं पता हो सकता कि इसका लेवल क्या, अगर आपको पहले से ही पता हो तो फिर तो यू आर मास्टर है ना। बात समझ आई आसिफ या अभी भी नहीं आई? क्वेश्चन आसिफ का ये है कि क्या ये जो मैंने कहा कि आपने एक पैकेट भेजा, एक सेगमेंट भेजा और जवाब आपको आपको जवाब उसका एक्नॉलेजमेंट के फॉर्मेट में आएगा, तो मैं कितनी देर एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करूं? तो मुझे फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक हॉप अवे भी हो सकते हैं, आप 10 हॉप अवे भी हो सकते हैं, आप 20 हॉप अवे भी हो सकते हैं, और दरमियान में जो मशीन हैं वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है कि वो आपको लाजमी ही इतना डिले देंगे। सम में गिव यू मोर। मिसाल के तौर पे आपने मुख्तलिफ बैंकों में जाके पैसे जमा कराने हैं, कोई बैंक आपको 10 मिनट में फारग कर देगा, कोई आपको 2 घंटे खड़ा रखेगा, तो दैट इज नॉट फिक्स्ड, यू कांट टेक इट एज अ फिक्स्ड वैल्यू। डज इट मेक सेंस नाउ आसिफ? यस सर। ओके। फिर उसके बाद है कंट्रोल बिट्स। कंट्रोल बिट्स, तो कंट्रोल बिट्स की बात करते हैं जी।
control bits in TCP. जी, तो ये आपके, जिसको हम बाजू कहते हैं फ्लैग्स भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके ये 6 बिट्स हैं फॉर योर कंट्रोल बिट्स, इसको फ्लैग्स भी कहते हैं, जो इसको फ्लैग्स भी कहते हैं। तो लेट्स सी देम, ये 6 बिट्स क्या कहते हैं। जी, ये अच्छा डायग्राम है। ये बता रही है 6 बिट जी, अर्ज, एक्नॉलेज, पुश, रीसेट, सिंक एंड फिन। ये 6 बिट्स हैं। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है नजर? ये 6 बिट्स हैं। सर अगर आपने कोई अर्जेंट पॉइंटर लगाया हुआ है तो आप इस बिट को 1 कर देंगे। अगर आप कोई एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं तो आप इस बिट को 1 कर देंगे, यानी सेकंड बिट को। यानी क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 0 0। इसी तरह अगर आप कोई उसको बता रहे हैं कि मैं आपको ये डेटा दे रहा हूं, सोर्स डेस्टिनेशन, पर जो ही तुम्हें मिले इसको एप्लीकेशन को दे दो, डोंट वेट, तो पुश, तो आप इसको बंद कर देंगे। बाज औकात ये फील्ड बड़ी बुरी तरह इस्तेमाल हुई है, रीसेट। किस तरह बुरी तरह इस्तेमाल हुई है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इस तरह कि आप और आपकी डेस्टिनेशन, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप नॉन ग्रेसफुली किसी कनेक्शन को क्लोज करना चाहते हैं तो आप बस रीसेट देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे बाज औकात आप किसी से बात कर रहे होते हैं और आप उसे, एक ग्रेसफुल तरीका तो ये है ना कि आप उसके साथ दुआ सलाम करें, आप उसको कहेंगे और फिर उसको आराम से बताएं कि जी अब मैं थोड़ा बिजी हूं, मेरी क्लास है, तो घंटे या डेढ़ के बाद मिल लेंगे। तो ये ग्रेसफुल मेथड है। और एक तरीका ये होता है, यार फारा का नेम, इट इज नॉन ग्रेसफुल मेथड। So this flag has this meaning, reset, RST। जब आपने कनेक्शन बना लिया, मैंने कल बताया था कि सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान, जब, क्योंकि टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड, टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड, तो ये 3 वे हैंडशेक करके कनेक्शन बनाता है। अभी ये एक्सप्लेन करूंगा कि 3 वे हैंडशेक क्या है, लेकिन बस ये याद रखें कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे सोर्स और डेस्टिनेशन अपना राजीनामा शो करते हैं, अपना इकरार शो करते हैं कि यस वी वांट टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दी 3 वे हैंडशेक। अब कनेक्शन तो बन गया, आप एकदम उसको खत्म करना चाहते हैं, ग्रेसफुली ना हुआ ना, आप बस एक रीसेट दे दीजिए, वो समझ जाएगा कि ये मेरे साथ है, जो इसने राजीनामा या जो भी आप कह रहे हैं इकरारनामा किया था, ये इसको आगे लेके चलना नहीं चाहता, बस कनेक्शन क्लोज हो जाए। कुछ बात समझ आ रही है? जब आपने रीसेट भेजा तो उसको पता चल रीसेट आपने भेजा ना, तो बस वो क्लोज कर देगा, अपने एंड से भी सॉकेट को, उस पोर्ट को फारग कर देगा, समझ जाएगा कि डिस्प्ले जो भी सोर्स था वो मुझसे फर्दर कम्युनिकेट करने में राजी, खुश नहीं। ठीक है, अब यही काम हैकर भी करता है। कैसे करता है हैकर? दोनों के दरमियान में मैन इन द मिडल बन जाता है, मैन इन द मिडल बन जाता है। मिसाल के तौर पे आप एक तरफ शुएब है और दूसरी तरफ बैंक है, और दरमियान में मैन इन द मिडल बन गया बॉस। ये क्या करता है, आपको एक रीसेट भेजता है। आप तो समझ जाएंगे कि बैंक मुझसे बात नहीं करना चाहता, बैंक मुझसे बात नहीं करना चाहता, समझते आप अपनी वो पोर्ट क्लोज कर देंगे। बैंक ने तो नहीं रीसेट भेजा, वो तो अब्बास ने भेजा है, अब्बास आपके बिहाफ पे उसके साथ कम्युनिकेशन शुरू कर देगा। समझ आई? तो ये खतरनाक तरीके से इस्तेमाल होता है। इसके अलावा क्या है, सिंक। तो याद रखिए सिंक
कनेक्शन बनाने में इस्तेमाल होता है। तो अगर आपने सिंक का सेगमेंट भेजना है तो आप इस फील्ड को 1 कर देंगे। बात समझ आ रही? और अगर आप अपना बस आपने जितनी कम्युनिकेशन करनी थी दैट्स एनफ, पूरा हो गया है, आपने जो भेजना था आपने भेज दिया, तो आप उस कनेक्शन को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे और फिर भेज देंगे, फिनिश। तो ये है 6 फ्लैग्स, कंट्रोल बिट्स, जो कि टीसीपी में जाते हैं। फिर उसके बाद है विंडो साइज। जेंटलमैन, ये काम देती है विंडो साइज फ्लो कंट्रोल के लिए, इसलिए फ्लो कंट्रोल ये बताती है कि कौन सी बिट्स जानी चाहिए और कौन सी नहीं। ठीक है, सॉरी, मैं देख रहा था पार्टिसिपेंट के कितने लोग हैं, तो ओनली 3 हैं, विच इज नॉट गुड, बट व्हाट आई कैन डू फॉर दैट। So anyhow, one thing इस वक्त 1 मिनट से कम है, but doesn't mean कि the class is over. I will be send you the next link and please join as quickly as possible, right? तो हम बात कर रहे थे विंडो इज फॉर फ्लो कंट्रोल। तो जब आप उसको, विंडो का मतलब है कि आप उसको बता रहे हैं कि जी आप स्लो डाउन हो जाए। अगर आप अपना विंडो साइज छोटा कर लोगे, इसका मतलब है आप उसे बता रहे हैं स्लो डाउन। अगर आप अपना विंडो साइज ज्यादा कर देते हैं, इसका मतलब है कि आप उसे बता रहे हैं कि ज्यादा भेज दो, मैं फारग हूं। तो इस तरह आपने क्या किया? फ्लो को कंट्रोल किया। आप ट्रैफिक का रिकॉर्डिंग एंड वी आर बैक। ठीक है, तो अब आपने साजिद, आसिफ एंड काजी, आपने समझ लिया कि विंडो साइज क्या करती है। इसके बाद चेकसम किस लिए होता है? एरर डिटेक्शन के लिए। एरर डिटेक्शन के लिए कि अगर कोई डेटा आया है, एप्लीकेशन को देने से पहले चेक कर लो उसको कि क्या ये वही डेटा है जो कि सोर्स पे भेजा है। अगर है, अल्दो ये बड़ा कमजोर है, ये पुअर मेथड है, लेकिन जब पुअर होता है तो उसकी उसकी ज्यादा क्या कहना चाहिए, कम्प्लेक्सिटी नहीं होती। इसका मतलब ये सिंपल है। ये क्या है? सिंपल है। लेकिन क्यों गए नीचे की लेयर पे, डेटा लिंक लेयर के ऊपर? अगर आपको याद हो, सीआरसी था, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लेकिन बहुत एफिशिएंट है। तो आपने वहां चेक कर लिया है कि खराबी नहीं है, इसलिए अगर ऊपर आप एक सिंपल मेथड भी इस्तेमाल कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे फर्क अब IPv6 में नहीं, तो वो IPv4 पुराना था ना, इसलिए हमने IPv6 में देखा कि अब जरूरत नहीं है, हमने छोड़ दिया। इसी तरह यहां भी अगर देखा जाए तो शायद जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बिफोर गिविंग टू द एप्लीकेशन हम एक दफा फिर भी उसको चेक कर लेते हैं कि कोई खराबी तो, कोई करप्शन तो नहीं। जैसे आपको, जब आप किसी ऑफिस में इंटर होते हैं तो आपको गेट से, एक इलेक्ट्रॉनिक गेट से भी पास करते हैं, आपकी बॉडी भी सर्च करते हैं, लेकिन जब आप अंदर चले जाते हैं फिर सिर्फ आपको आंखों से देखा जाता है कि आप कोई गलत बंदे तो नहीं है, आपका लिबास सब कुछ ठीक है, तो कहते हैं जी सही ठीक है। तो बस ये चेकसम वो काम कर रहा है। ठीक। और आखिरी है अर्जेंट, ये पॉइंटर है। तो अगर कोई डेटा है आपके उसमें अर्जेंट है और जब वो खत्म हो तो यहां पे हम उसको पॉइंटर देते हैं कि भाई इसके बाद वाला डेटा जो है वो अर्जेंट नहीं रहा। मोस्टली इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन एक ऑप्शन रखा गया है कि आप किसी सेगमेंट में, किसी डेटा में अगर कोई खास पार्ट इंपॉर्टेंट है, यू कैन मेंशन इट एज ए स्टार्ट ऑफ द अर्जेंट एंड एंड ऑफ द अर्जेंट डेटा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये हेडर पढ़ने से हमें समझ आ गई कि ये क्या क्या काम कर सकता है। ये फ्लो कंट्रोल कर सकता है, ये एरर डिटेक्शन कर सकता है, ये रिलायबिलिटी दे सकता है, ये मल्टीप्लेक्सिंग कर सकता है, ये डीमल्टीप्लेक्सिंग कर सकता है, अर्जेंट भी, मतलब मेजर फंक्शनैलिटी नहीं है लेकिन चले फिर भी फंक्शनैलिटी है। तो अगर आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक करते हैं तो फिर हम बड़े ही आसानी से ये कह सकते हैं
कि क्या काम है, फीचर्स हैं टीसीपी के। नंबर 1, इट एस्टैब्लिश ए सेशन by using the sync and ACK. By using the sync and ACK plus ACK, क्या फायदा इनसे मिलता है? These two messages segments are used to establish a session. अब बिजली आ जाती है, बिजली आ जाती है। तो हमने कहा कि क्या है जनाब, सिंक और ACK से, सिंक और ACK किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये दो सेगमेंट्स हैं जो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं? सेशन को बनाने की। इस बात समझ आ रही? कैसे होता है? चलिए ये एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। देखें जी, मिसाल के तौर पे ये सोर्स है, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन। सोर्स चाहता है कि डेस्टिनेशन से बात करे, ठीक है? सोर्स चाहता है कि डेस्टिनेशन से बात करे। क्या होगा? ये इसको एक सिंक पैकेट भेजेगा और अभी हमने कंट्रोल फ्लैग पढ़े हैं, कंट्रोल फ्लैग में सिंक बिट को 1 कर देगा ताकि पता चले डेस्टिनेशन को कि कोई इसके साथ बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है। अब डेस्टिनेशन क्या करेगी? इसको एक्नॉलेज कर देगी, हाँ जी ठीक है। अब एक्नॉलेज नहीं करती, इसका मतलब है कि डेस्टिनेशन इज नॉट विलिंग टू टॉक। तो आपने एक भेज दिया, सिंक भेज दिया, सिंक भेज दिया। अब क्या होगा? ये तो इस सिंक में, याद रखें, इस सिंक में तो ये बताया, इस सिंक में तो ये बताया कि सोर्स वांट्स टू टॉक टू द डेस्टिनेशन, लाइक योर मशीन वांट्स टू टॉक टू फेसबुक। दिस सिंक इज शोइंग दिस यूर विलिंगनेस। डेस्टिनेशन में जब एक्ट भेजा तो इट दिस एक्ट इज रिप्रेजेंटिंग the willingness of the destination, okay, you can communicate with me, you can communicate with me. I ये नहीं बता रहा कि I want to communicate with you, उसके लिए ये अपना async भी भेजेगा, यानी sync ACK भेजेगा। क्या भेजेगा? sync ACK। ACK से उसने बताया कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, और sync से उसने बताया मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूं। अब ये 2 वे कम्युनिकेशन के लिए बात चल रही। पहले यहां तक सिंक के साथ एक सिंक आया था, तो इट वाज ए 1 वे कम्युनिकेशन कि जी सोर्स विल सेंड टू द डेस्टिनेशन, बस एग भेजा तो ठीक है, मतलब तुम भेजो मुझे, मैं रिसीव करूंगा। ये तो 1 वे हो गया ना। जब आपने सिंक इसमें भी भेज दिया, सिंक डेस्टिनेशन में भी भेज दिया, इसका मतलब कि ठीक है तुम तो मुझे भेजोगे, मैं भी तुम्हें भेजूंगा। अब क्या करेगा डेस्टिनेशन सोर्स? ये भी अपना एक भेज देगा। इसका मतलब ठीक है, जो आपने सिंक भेजा है मैं उसका खैरमकदम करता हूं, मैं जो आप मुझे भेजेंगे मैं भी उसको जवाब दूंगा। यूं इसके साथ ये 2 वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और एक कनेक्शन बना है। इसलिए हम कहते हैं कि टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। बात समझ आई? यही वो कह रहा है। यस सर। टीसीपी जी जेंटलमैन, ओके। तो इससे पता चला। इज देयर एनी क्वेश्चन जेंटलमैन? नो सर। ओके, तो इलियास एंड कंपनी, इलियास एंड कंपनी, अगर क्वेश्चन नहीं है तो नाइस। आसिफ ने कहा नहीं कोई क्वेश्चन। तो टीसीपी इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट नेगोशिएट, दैट वाज द नेगोशिएशन व्हिच आई एक्सप्लेन टू यू ऑन द लेफ्ट। They negotiate and establish a permanent connection which we call as a session between the source and destination prior to forwarding the your valuable data. जब ये काम हो गया उसके बाद इधर से भी डेटा आएगा, इधर से भी डेटा आएगा, इधर से भी डेटा आएगा,
और चलता रहे। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि किस तरह सेशन बनता है टीसीपी। नंबर 2, रिलायबल डिलीवरी, क्योंकि आप हर सेगमेंट को although के याद रखो, नॉर्मली स्टूडेंट ये समझते हैं कि हर एक सेगमेंट को नंबर मिलता है। मैं कहता हूं हर एक बाइट को मिलता है। मैंने कहा अगर आपने 100 बाइट भेजे तो 100 बाइट है एक सेगमेंट के अंदर, तो उसको नंबर 100 मिलेगा। इसका मतलब है कि उसमें 100 बाइट्स। बात समझ आ रही है ना? लेकिन स्टूडेंट ये समझते हैं कि पहला सेगमेंट 1, दूसरा सेगमेंट 2, तीसरा सेगमेंट 3, 4। समझने के लिए बुरा नहीं है। तो जब आपने 1 भेजा तो आप एज्यूम करते हैं कि वो 2 एक्नॉलेज करेगा। समझने के लिए बुरा नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि पहले आपने अगर 100 भेजा तो वो अब 101 बाइट, एक नया सेगमेंट आपसे एक्सपेक्ट करेगा जिसका स्टार्टिंग बाइट होगा 101। कितने उसमें बाइट होंगे ये डेस्टिनेशन को नहीं पता, क्योंकि सेगमेंट का साइज वेरिएबल होता है और वो सोर्स की मर्जी है कि पहले 100 बाइट ले ले, अगले में 50 ले ले, अगले में 500 ले ले। इसलिए तो हमारा पैकेट जो होता है वो वेरिएबल साइज का होता है, फिक्स साइज का नहीं होता। बात समझ आ गई? तो क्योंकि आप सीक्वेंस नंबर लगा रहे हैं और फिर सीक्वेंस नंबर को एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो इससे क्या चीज हासिल कर रहे हैं? रिलायबल डिलीवरी। क्या चीज हासिल कर रहे हैं बशीर? रिलायबल डिलीवरी। क्या आपने मिसाल आगे बताएंगे कि ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये 3 किस्म की हो सकती है। कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, और पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। तो हम इस पे बात करेंगे कि ये कि 3 क्या, उसका वो फंक्शन क्या है, मकसद क्या है, हम इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ अभी फॉर टाइम बिंग ये समझाना मकसद है कि सीक्वेंस नंबरिंग करने से और एक्नॉलेजमेंट भेजने से आप क्या चीज इंश्योर कर रहे हैं कि डिलीवरी रिलायबल हो। यानी अगर किसी कोई नहीं पहुंचता, आपको रास्ते में गिर गया, तो लाजिक तौर पर आप एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेंगे। जब एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेंगे दोबारा भेजने पे मजबूर होगा। तो इसका मतलब अगर आपका, हमें पता है कि नेटवर्क लॉसी है, नेटवर्क में लॉस है, लेकिन फिर भी क्योंकि रीट्रांसमिशन हो जाती है, तो डेस्टिनेशन की एप्लीकेशन को ऐसा पता चलता है कि कोई बाइट लॉस हो ही नहीं सकता, सब अच्छा है। तो दैट इज दी समथिंग विच कॉल्ड एज दी, इट इंश्योर द रिलायबल डिलीवरी। तो देखिए यहां भी कह रहा है फॉर मेनी रीजन इट इज पॉसिबल फॉर अ सेगमेंट टू बिकम करप्टेड और लॉस्ट as it is transmitted over the network. TCP ensures that each segment that is sent by the source arrives at the destination. ये है टीसीपी का कमाल कि वो इंश्योर करता है कि जो सोर्स ने भेजा है वो डेस्टिनेशन पे लाजमी पहुंचे, चाहे आपको रीट्रांसमिशन ही क्यों ना करनी पड़े। ठीक है, बात समझ आ रही है? देन द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टीसीपी इज ऑर्डर डिलीवरी। आमतौर पे हर एक पे नंबर लगा हुआ है, हर एक पे नंबर लगा हुआ है, आगे पीछे नहीं हो सकता। तो ये वो कह रहा है बिकॉज द नेटवर्क में प्रोवाइड मल्टीपल रूट्स दैट कैन हैव डिफरेंट ट्रांसमिशन रेट्स, डेटा मे अराइव इन रॉन्ग ऑर्डर बट द टीसीपी विल मेक इट इन ऑर्डर। समझ आ रही मेरी बात? कि अगर आप पिशावर से अपना डेटा भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन, तो क्या होगा? आपका डेटा मुख्तलिफ रास्तों से जा सकता है। हो सकता है आपने जो पहले सेगमेंट भेजा है वो लेट आखिर लेट पहुंचे, और जो आपने बाद में भेजा है वो जल्दी पहुंच गया, लेकिन इसमें नंबर लगा हुआ है। वो उस नंबर के मुताबिक देखेगा कि जी ये ऑर्डर में है कि नहीं, लेकिन एप्लीकेशन को सारी डेटा ऑर्डर में मिले, उसको अनऑर्डर नहीं मिल सकता। बात समझ आ गई? क्योंकि नंबरिंग हुई है। फिर आखिरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है अमंग द फोर, दैट इज इट फ्लो कंट्रोल करता है। मैंने कल भी बताया था कि अगर मैं इस फैन को चाहूं या मैं इस एयर कंडीशनर को चाहूं कि ये स्लो हो जाए, तो आई कैन मेक इट स्लो। इसका मतलब आई विल बी गिविंग इट लेस एम्पेयर, वोल्टेज तो कांस्टेंट है 220, लेकिन आई विल बी गिविंग इट लेस करंट। इफ आई वांट टू मेक इट फास्ट,
आई शुड गिव इट मोर। जैसे गाड़ी है, वहां भी आप फ्लो कंट्रोल करते हैं। जब आप एक्सीलेटर ज्यादा दबाते हैं तो आप कहते हैं जी 1.5 पेट्रोल हो खड़ो। जब आप गाड़ी को आहिस्ता चला रहे होते हैं, देखो माइलेज को, what you are doing here, you are controlling the flow of the petrol to the engine। तो यहां पे भी हमने देखा है कि विंडो का साइज है जो कि उसको बता सकता है। वेट करो, विंडो का साइज आप 100 बाइट भेजते हो, इसका मतलब है कि वो 100 बाइट्स तक आपको भेजेगा और फिर वेट करेगा कि आप उसको एक्नॉलेज करो। आप एक्नॉलेज नहीं करोगे, वो वेट में पड़ा रहेगा, स्लो हो गया। अगर आप उसको लेट करें कि 65,000 का विंडो भेज देते हो, तो वो 65,000 तक भेजता रहेगा बगैर किसी एक्नॉलेजमेंट के, तो आप पे ज्यादा ट्रैफिक आप पे आ जाएगी। इस तरह फ्लो कंट्रोल होगी बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो यही वो बात कर रहा है कि नेटवर्क होस्ट हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। लाजमी तौर पे हर एक, सिर्फ नेटवर्क होस्ट नहीं, हर दुनिया की हर चीज जो है दैट हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। दुनिया का सबसे गरीब मुल्क मैं देखूं कर्जों के हिसाब से तो वो अमेरिका है। इवन वो इंडिया का भी कर्जदार है। हम समझते हैं कि इंडिया कमजोर है, गरीब मुल्क है। अमेरिका बहुत बड़ा कर्जदार है इंडिया का, जर्मनी का। ठीक है, तो कहने का मकसद ये हुआ कि हर एक की लिमिटेड रिसोर्सेज। इवन आप कहें कि जी मेरी मोबाइल, मेरा लैपटॉप, उसमें तो लेट करो कि जी 32 GB की रैम है, 1 टेरा का हार्ड ड्राइव है, यस इट इज वेरी बिग बट स्टिल लिमिटेड। ठीक है ना? इसलिए तो बाल पॉलिटिकल लीडर, मैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता है वो कहते हैं कि हम बड़े गरीब हैं। ठीक है ना? तो क्योंकि वो सच बोलते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, काउंटेबल नहीं है लेकिन है तो लिमिटेड। एनीहाउ वी कम बैक। तो क्या कहता है, व्हेन टीसीपी इज अवेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज आर ओवरटैक्स्ड, इट कैन रिक्वेस्ट द सेंडिंग एप्लीकेशन टू रिड्यूस द रेट ऑफ डेटा फ्लो। दिस इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। बात समझ आ गई कि नहीं? तो अगर ये समझ आ गई तो जेंटलमैन बड़ी आसानी से जो मैंने अभी फील्ड्स आपके सामने रखी थी वो आपके सामने एक्सप्लेन हो जाएंगी कि सोर्स पोर्ट का क्या मतलब है, डेस्टिनेशन पोर्ट का क्या मतलब है। आपको क्लियर हो गया सीक्वेंस नंबर क्या है, कितने बिट्स का है, एक्नॉलेज नंबर क्या है, हेडर लेंथ क्या है, रिजर्व बिट्स फ्यूचर यूज के लिए मैंने कहा, कोई इस्तेमाल अभी तक हमें नहीं पता। कंट्रोल बिट की हर एक फील्ड मैंने आपको बताई, अर्जेंट से लेके फिनिश तक 6 बिट्स। तो जिस बिट को 1 कर दोगे वो फ्लैग इसको रिप्रेजेंट करेगा, वो कंट्रोल बिट इसको रिप्रेजेंट करेगी, ये सेगमेंट इस पर्पज के लिए। फिर हमने आपको विंडो साइज बताया कि 16 बिट फील्ड यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ बाइट दैट कैन बी एक्सेप्टेबल, यानी कि फ्लो कंट्रोल, इससे ज्यादा मेरी एक्सेप्टेबल हरगिज नहीं है। चेकसम फॉर एरर डिटेक्शन, और याद रखो कि चेकिंग ऑफ सेगमेंट, हेडर एंड डेटा दोनों को ये चेक करता है, हेडर को भी और डेटा को भी। और अर्जेंट 16 बिट फील्ड यूज टू इंडिकेट इफ द कंटेन डेटा इज अर्जेंट और नॉट। तो हमने ये सारी फील्ड्स माशाल्लाह पढ़ ली। अब हम देखना चाहते हैं कुछ एप्लीकेशन जो कि टीसीपी को इस्तेमाल करती हैं। मिसाल के तौर पे एचटीटीपी, वेब, जीटीपी मीन्स वेब। ये वेब में आप चाहते हैं कि आपको ये जो 4 मैंने कैरेक्टरिस्टिक दी हैं, यू वांट टू सी दैट इन वेब। आप चाहते हैं कि रिलायबल हो, आप चाहते हो कि, इसलिए आप कनेक्शन पहले बनाते हो, आप चाहते हो कि ऑर्डर मिले, आगे पीछे ना हो। तो अगर आप ये 4 कैरेक्टरिस्टिक चाहते हैं, दैट द रीजन यू हैव हियर योर वेब और इवन द HTTPS which is the newer protocol for secure protocol for the same, that is again using the TCP। इस तरह you do the file transfer, FTP, SFTP, SFTP, again it is using the, for what purpose the FTP is used, file uploading and downloading। जैसे इंशाल्लाह ताला किसी एक कोर्स में आपके साथ, जो कि आपके साथ बैठे हुए
बस वो इसी वीक में करेंगे। देखिए मैंने उनके लिए ये TFTP क्लाइंट डाउनलोड की, सर्वर है सॉरी, TFTP सर्वर है ये। तो ये मेरे डेटा को यहां से उठा के राउटर पे ले जाएगा या राउटर से उठा के अपलोड डाउनलोड, दैट इज डन बाय यूजिंग। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो इतना डिस्टेंस नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, तो TFTP यूजेस UDP while FTP and SFTP uses TCP। बात समझ आ रही है? नाइस। So here is the okay. So Arsalan and company, look at here, gentlemen. Okay, your FTP and SFTP uses this. You are emailing. Again, it requires, because it may have lot of attachments. You want that it should be reliable. That's the reason you are using the TCP. Similarly, you want to already work with the SSH. So you want a secure remote login. Secure remote login. You will be using SSH. Again, it works on TCP because आप कमांड्स भेजनी, कमांड पे आप रिलाई नहीं कर सकते कि पहुंचे ना पहुंचे खैर है। तो आपने देखा मल्टीपल आर कमिंग विद सर्टेन पोर्ट नंबर्स। मिसाल के तौर पे here the port number is 25, here the port number if I remember correctly is 23, here the port number is 20 and 21, here the port number is 80/443, well known ports। तो ये सारे इकट्ठे होके एक पे जा रही हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। अगर वापस आएगा, वापस आ रहा है एक पे आएगा, अलग अलग हो जाएगा, डीमल्टीप्लेक्स। इस बात समझ आ रही? तो एप्लीकेशन दैट यूजेस TCP, तो जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स जो कि क्या इस्तेमाल करती हैं, TCP को इस्तेमाल करती हैं। देन कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। हम इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स देखना चाहते हैं, बहुत ही आसान है। डेटा इज रिकंस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर दैट इज रिसीव, जिस ऑर्डर में रिसीव हुआ बस वही ऑर्डर दुरुस्त, यानी कोई ऑर्डरिंग नहीं है, कोई ऑर्डरिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, पहले ये देख लेते हैं फिर इस फीचर पे आते हैं। क्या है इसमें, वहां पे 20 बाइट्स थे, उससे ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ पे बस फिक्स 8 बाइट्स है, पूरा हेडर 8 बाइट, तो छोटा हुआ ना। तो छोटा होगा तो कम काम करेगा। क्या काम कर सकता है, इस फील्ड की वजह से मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग कर सकता है, इस वर्ड की वजह से ये काम, बाकी क्या लेंथ सिर्फ बता रहा है। और चेकसम एरर डिटेक्शन के लिए वो भी बड़ा कमजोर, इसलिए मैं कहता हूं ये कुछ भी नहीं करता मां से भाई इस काम की। तो स्मार्ट है, छोटा है, फास्ट है। जब छोटा होगा तो फास्ट है, जहां 20 बाइट्स आप प्रोसेस करेंगे वहां पे आप 8 बाइट प्रोसेस कर रहे हैं, लेस देन हाफ, दैट द रीजन इट इज फास्ट। लेकिन कोई ऑर्डरिंग, कोई सीक्वेंस नंबर नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, ऑर्डर डिलीवरी नहीं है, विंडो साइज नहीं है, फ्लो कंट्रोल नहीं है। तो यही वो यहाँ पे आपको कहना चाहता है कि डेटा इज जिस ऑर्डर में आया बस वही, क्योंकि नंबर तो है ही नहीं, तो जिस ऑर्डर में आया वही सही रहा, वही सही है, वही सही है। देन एनी सेगमेंट दैट इज लॉस्ट और नॉट रीसेंट, कोई रीट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट नहीं, कोई रीट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट नहीं, क्रॉस नहीं पहुंचा तो बदना पहुंचे, अभी देते हैं जी। फिर क्या है, नो सेशन एस्टेब्लिशमेंट, कोई पहले 3-वे हैंडशेक नहीं हो रहा। बेस्ट एफर्ट, बेस्ट एफर्ट, द सेंडिंग इज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कोई सोर्स को पता नहीं है कि मेरे भेजने के लिए, तो आप 3-वे हैंडशेक कर लेते हैं तो आपको कंफर्म हो जाता है कि रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर यू।
कोई आपने थ्री वे सेशन नहीं बनाया, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस डाल दो अल्लाह के नाम पे और इस उम्मीद के साथ के पहुंच जाए। बात समझ आ रही? अब क्वेश्चन ये किया सर गया, सर मेरा क्वेश्चन है, सुन रहा हूं, सर बोले। मेरा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर रिसीवर जो है वो रेडी नहीं है सर डेटा रिसीव करने के लिए, तो फिर? बट लॉस, डेटा है ही नहीं, रिसीवर है ही नहीं, लॉस। सर तो फिर फिर हमने कहा ये टेस्ट तो नेटवर्क, कनेक्शन बहुत बिजी होगा एट अ टाइम, अगर ऐसे। बिजी बिजी का हमें नहीं पता कि हमारा रिसीवर जो है वो उसके पास है या नहीं। हमारा ये है कि सोर्स के पर्सपेक्टिव से बस आपने नेटवर्क पे डाल देना है, इस उम्मीद के साथ कि पहुंच जाएगा। मैंने बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पोस्ट माल होता है या पोस्ट ऑफिस होता है, आप वहां पे अपना खत डाल देते हैं लेटर बॉक्स के अंदर, इस उम्मीद के साथ कि पहुंच जाए। बात समझ आई? इसलिए तो हम कह रहे हैं नॉन रिलायबल है। खत पहुंचे ना पहुंचे, मुझे एक लेटर आना होता है हर 3 महीने के बाद, और ये पूरे साल में कभी भी नहीं आया, मुझे ईमेल उनकी तरफ से आ जाती है कि जी हमने खत आपको भेज दिया है, मुझे कभी भी नहीं मिला। गॉट द आंसर? यस सर, गॉट, ओके। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि ये अनरिलायबल है, ये ऑर्डर डिलीवरी नहीं देता। ठीक है अरसलान, ठीक है आसिफ और लिया। तो अब हम आते हैं कि जी क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया, क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया कि कौन सी एप्लीकेशन है जो ये इस्तेमाल करेगी। बड़ी ही आसान एग्जांपल, मिसाल के तौर पे यू आर डूइंग द स्ट्रीमिंग वीडियो, स्ट्रीमिंग वीडियो, you are does you are creating the bits and giving it to the UDP। बस यूडीपी उसको अल्लाह के नाम पे नेटवर्क लेयर को दे रहा है। अगर कुछ पहुंच जाए सारे तो वेल एंड गुड, नहीं कुछ पहुंचते तो कोई मसला नहीं, क्योंकि क्या ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, थोड़ी सी वॉइस में मसला आएगा, थोड़ी सी वीडियो में फ्लिकर आएगा, डजंट मैटर, डज नॉट। तो तमाम कितनी भी आपकी रियल टाइम एप्लीकेशन है, रियल टाइम एप्लीकेशन है, मोस्टली मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, दैट इज यूजिंग यूडीपी। बात समझ आ रही? नाइस। तो यही 4 फील्ड के बारे में, सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, लेंथ है, विच शोज दी लेंथ ऑफ द यूडीपी डेटाग्राम हेडर। ठीक है, क्योंकि अलग अलग की जरूरत इस क्यों नहीं है, वहां पे अलग अलग इसलिए था, हेडर लेंथ है, यहाँ हेडर लेंथ नहीं है, क्योंकि हेडर लेंथ तो फिक्स है 8 बाइट, तो ये टोटल लेंथ है। ठीक, कौन कौन सी एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, उसका जवाब भी दे देते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन देख लें। वन इज दी DHCP, DHCP को आप मांगते हैं ना उससे कि मुझे आईपी दो, इट इज यूजिंग छोटा डेटा है, मुझे आईपी दो, उसने आपको 32 बाइट्स बिट्स भेज दी, बात खत्म। तो जब भी छोटा बिट डेटा भेजना होता है, यूडीपी इज मच बेटर, क्योंकि अगर आपने मिसाल के तौर पे 4 बाइट भेजनी है और आप उसके साथ तो 20 बाइट्स एक्स्ट्रा ऐड करें, इज इट मेक सेंस? नहीं। यानी अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई 1,000 रुपए की चीज किसी को भिजवानी है और आप 10,000 आप उसके लिए एक गाड़ी खरीद ली, तो जी एक पिजारो खरीदते हैं क्योंकि हमने इसमें 1,000 रुपए की पेटी भेजनी है। नहीं, हाँ गोल्ड की पेटी हो, फिर आप कहेंगे कि ठीक है जी इसके लिए पिजारो भी चाहिए और 4-6 गनमैन भी चाहिए। तो जहां भी छोटा डेटा होता है यूज दी यूडीपी। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने बताया, DHCP है, DNS है, क्या कहते हैं, आप उसको भेजते हैं एक यूआरएल, वो आपको भेजता है एक 32 बाइट बिट्स। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SNMP, SNMP, अगेन यूजिंग यूडीपी। अभी मैंने बताया TFTP, अभी वॉइस ओवर आईपी, अभी मैंने बताया मल्टीमीडिया, रियल टाइम, वॉइस ओवर आईपी इज वन ऑफ द रियल टाइम एप्लीकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
all of them are using UDP. बात समझ आई? ओके, देन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि पोर्ट नंबर क्या होता है। मैंने बता दिया कि इसमें पहला है वेल नोन पोर्ट्स, दूसरा मैंने बताया कि ये 0 से लेके 1023 तक। फिर बताया कि रजिस्टर्ड पोर्ट्स 1024 से लेके 49,151 तक। फिर बताया कि टेम्पररी या एफिमेरल पोर्ट, एफिमेरल पोर्ट्स start from 49,152 and goes up to 65,530। बात समझा रही? रीजन भी आपको बता दिया कि वेल नोन कहाँ इस्तेमाल होते हैं, रजिस्टर्ड कहाँ होते हैं, और टेम्पररी पोर्ट्स कहाँ इस्तेमाल होती हैं। यही चीज यहाँ पे आपको दिखाई गई। कहता है कि एक सोर्स पोर्ट होता है, चाहे वो टीसीपी है चाहे वो यूडीपी है, इट इज यूजिंग दी सोर्स पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो use 65,535 for TCP and the same, क्योंकि हर एक जॉब अपने अपनी, तो इसका मतलब एक होस्ट 65,000 कनेक्शंस बना सकता है TCP के और 65,000 UDP के। बात समझ आ रही? देन इज दी, यही बात क्लियर कर रहा है जी। सॉकेट पेयर दैट वी, अगर आपका इंटरेस्ट नेटवर्क प्रोग्रामिंग की साइड पे हो तो देन इट इज इंपॉर्टेंट। नेटवर्क प्रोग्रामिंग where we use the socket, which we call as the API, application programming interface। application programming interface इसमें क्या चीजें हैं? इसमें 4 चीजें आती हैं इस सॉकेट में। सॉकेट की इन 4 चीजों से सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, इस ट्रिपल को सॉकेट कहते हैं। यानी कंप्लीट इसने सब कुछ बता दिया ना कि इसका आईपी से क्या पता चला, होस्ट कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, और उस डेस्टिनेशन में कौन सी एप्लीकेशन, पोर्ट नंबर बता दें। तो यू सॉकेट ने पूरी बात बता दी, कहां जाना है और जहां जाना है उसमें कौन से कमरे में जाना है, कौन से ऑफिस में जाना है। तो यही वो कह रहा है, द सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट्स आर प्लेस्ड विद इन द सेगमेंट। प्रीवियस स्लाइड में हमने यही देखा, The segments are then encapsulated within the IP packets. The combination of the source IP and the source port number and the destination IP and destination IP port number is known as a socket. इस ट्रिपल को, 4 चीजों को सॉकेट कहते हैं। सॉकेट enables multiple processes running on the client to distinguish themselves from each other। कैसे डिस्टिंग्विश होंगे एक दूसरे से? पोर्ट नंबर एंड मल्टीपल कनेक्शंस टू द सर्वर प्रोसेस टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। ये सॉकेट आपको, क्योंकि सॉकेट आपने उसका डेस्टिनेशन आईपी लगा दिया, सोर्स आईपी लगा दिया, क्लियर हो गया किसने भेजा किसको जाएगा, सोर्स पोर्ट लगा दिया, पता चला किस एप्लीकेशन ने भेजा है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट लगा दिया, बता रहे हो कि कौन सी एप्लीकेशन के पास जाना है। मिसाल तौर पे सिस्को के पास जा रहे हो 1812, वेब सर्वर के पास जा रहे हो 80,443। बात समझ आ गई? तो जेंटलमैन, अगर मेरी बातें समझ आ रही हैं तो इट्स वेरी नाइस। तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, वेल नोन पोर्ट फ्रॉम 0 to 1023,
कहता है कि these port numbers are reserved, ये आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, they are reserved for well-known applications. Defined well-known ports for common server application enable client to easily identify the associated server required. लेना होता तो आप जो सर्विसेज है उन तक ना पहुंच सकते. फिर मैंने कहा रजिस्टर्ड पोर्ट, ये रेंज, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपके सिस्को का जो रेडियस सर्वर है, ऑथेंटिकेशन सर्वर है, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करता है, उसका पोर्ट नंबर जो है 1812. किसने दिया? क्वेश्चन अभी मुझ पे किया गया, मैंने कहा अयाना ने दिया, ठीक है ना. तो ये देखें, these port numbers are assigned by Ayana to the requesting entity to use the specific processes and applications. और इसके अलावा जितनी भी पोर्ट हैं, आप उसको प्राइवेट पोर्ट कह सकते हैं, डायनामिक पोर्ट कह सकते हैं, टेम्पररी पोर्ट कह सकते हैं, एफिमेरल पोर्ट कह सकते हैं. ये लिखा गया है एफिमेरल पोर्ट. शॉर्टलेट, एफिमेरल पोर्ट्स आर शॉर्टलेट. कनेक्शन अभी आपने बनाया, क्लाइंट ने 10 मिनट के बाद छोड़ दिया, अपने वेब पेज पे कुछ लिखा और फिर उसको क्रॉस कर दिया. शॉर्टलेट. You don't need a registered port for this. You don't need a well-known port for this. So you are given dynamically the port number. Randomly you will get the port number. और समझ आ गई? Then is the, देखिए, well-known ports की example. इसमें नबी कहा 2021 जो है, they are for the FTP. 22 is for the SSH. मैंने 23 probably कहा था. 22 is for the SSH. 23 is for the telnet. 25 is for the SMTP, 53 is for the DNS, 67 is for the DHCP. So you can see here, gentlemen, that these are the ports which are well known. They are below 1023. बात समझ आ रही? और यही काम मैंने अभी कुछ देर पहले आपको नेट स्टार्ट करके दिखाया था. मैंने कहा था ये है वो पोर्ट नंबर, ये है वो पोर्ट नंबर, सोर्स का पोर्ट नंबर, ये डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर. बात समझ आ रही है? गुड क्वेश्चन. तो यहाँ पे आज हम इसको रोक लेते हैं. कल हम इंशाल्लाह ताला और स्टार्ट करेंगे. ये वो चीजें मैंने पढ़ा दी हैं, लेकिन जस्ट आप कह लो रिवाइज करेंगे. तो टीसीपी कम्युनिकेशन प्रोसेस यहाँ से, विच इज स्लाइड नंबर 35, इंशाल्लाह ताला यहाँ से हम कल शुरू करेंगे. अगर आपको क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड. पहले जी, ये ना, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं सर? ये तो हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ पे यूज हुए. क्या कहा सर ये जो टीसीपी का जो सर ये पार्ट्स है सर, ये जो हेडर और ये सब कुछ सर, सीक्वेंस नंबर या एक्नॉलेजमेंट नंबर, सर ये कहाँ पे यूज होती है? बिल्कुल जी, हमें तो पता ही नहीं होता जी. बिल्कुल, यूजर को पता होना भी नहीं चाहिए. अगर यूजर को ये बातें बताना हम शुरू कर दें तो फिर इंटरनेट जो है, दैट विल बिकम द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड. तो आप सिर्फ एप्लीकेशन लेयर के ऊपर मौजूद है, ये काम आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामर कर रहे हैं. बाकी तो जो दो लेयर्स हैं, स्पेशली जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है और नेटवर्क लेयर है, ये आपके कर्नल के अंदर या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद है. और बाकी ये लेयर जो है आपकी डेटा लिंक लेयर, कुछ पार्ट ओएस में है और कुछ पार्ट हार्डवेयर में है. मैक पार्ट जो हार्डवेयर में है. तो कहने का मकसद ये 2-2.5 लेयर जो हैं, they are within the operating system nowadays. That's the reason you don't call them operating system, you call network operating system. And it is done by your operating system automatically. आप नहीं कर रहे हो. On your behalf, when your का मतलब आप the application behalf, your OS is performing these duties. बात समझ आई? यस सर. जी, any other question? Arsalan is happy. Elias and Asif is also happy because Elias, Arsalan also sent me the top. Okay. So if you don't have any question,
I will stop here, and inshallah we'll be starting from the TCP communication process. ठीक है जी? Till then, Allah. Okay, sir. Allah.